Hello students, today we are going to discuss the Moivre theorem. Before this, we discuss the complex number cos theta plus I sin theta is denoted by e raised to the power I theta. That is e raised to the power I theta equal to cos theta plus I sin theta. अब इसका हम छोटा सा प्रूव करते हैं. Since e raised to the power x, actually expansion of e to the power x, ये होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. देयरफॉर e टू दी पावर आई थीटा, एक्स को अपन रिप्लेस कर रहे हैं आई थीटा से, तो 1 प्लस आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस I raised to the power 3 theta raised to the power 3 upon factorial 3 plus dot dot dot. Now simplify 1 plus I theta upon factorial 1. I square कितना होता है -1, तो second term is negative, sorry third term is negative, theta square upon factorial 2, I cube equal to minus I, we get minus I into theta cube upon factorial 3 plus dot 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 dot. Give equation number 1. अब now find value of cos theta plus I sin theta. Cos theta plus I sin theta is equal to, अभी जो एक्सपांशन है अभी अपन ने लिखा था e to the power x, we will discuss later on after chapter number 13, differentiation, limits and derivative. अब now expansion of cos theta. cos theta का एक्सपांशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा रेज टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 प्लस I into sin theta, expansion of sin theta, theta minus theta cube upon factorial 3 plus theta raised to the power 5 upon factorial 5 minus dot 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 dot. अब नाउ थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1. थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1. अब यहाँ पे मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बता देता हूँ. फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल 3 मीन्स होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर. फैक्टोरियल 5 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. फैक्टोरियल 1 मीन्स 1 ओनली. अब नाउ सिंप्लीफाई एंड रीअरेंज. फर्स्ट राइट 1 एज इट इज. सबसे पहले अपन 1 लिख रहे हैं, यहाँ से मैंने 1 लिया है, ये 1 लिया है. फिर सेकेंड टर्म में यहाँ से ले रहा हूँ आई इंटू थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, आई इंटू थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1. तो प्लस I into theta upon factorial 1. Then we'll take minus theta square upon factorial 2. Minus theta square upon factorial 2. ठीक है, मैंने ये वाली टर्म ले ली.
अब इधर से मैं आई का इंटू कर रहा हूँ मैं थर्ड टर्म में, माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और इस तरह हम लिखते रहेंगे आगे, प्लस डॉट 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 डॉट। गिव इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 किसके इक्वल है, ई टू द पावर आई थीटा, e to the power I theta is equal to 1 plus I theta upon factorial 1 minus theta square upon factorial 2 minus I theta cube upon factorial 3 plus dot dot dot, and cos theta plus I sin theta is also equal to same things. So right hand side are equal for both the equation, so their LHS is also equal. It means e to the power I theta equal to cos theta plus I sin theta. Therefore we get one result, e to the power I theta is equal to cos theta प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे हम थीटा की जगह किसी भी नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे दे रखा है ई टू दी पावर आई और पाई बाय 3, देन वी कैन राइट कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दी मोइवर्स थ्योरम, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू दी पावर n is equal to cos n theta plus I sin n theta, where n is an integer. सिंस हमने अभी एक रिजल्ट प्रूव किया था, cos थीटा प्लस I sin थीटा I sin theta is equal to e raised to the power I theta. Give equation number 1. Now taking n power on both the sides, cos theta plus I sin theta raised to the power n is equal to e raised to the power I theta and whole raised to the power n, यानी I theta n हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू, अब नाउ ई आई थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब मैं थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, एन थीटा से, तो जहां जहां थीटा वहां क्या रखेंगे अपन, एन थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, where n is an integer. Now remarks. With the help of the Moivre theorem, we can find nth root of any complex number, cube root, fourth root. Here cos theta plus I sin theta raised to the power p by q, where q not equal to 0. p by q means रेशनल नंबर। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर पावर में दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला, cos थीटा वी कैन राइट cos 360 प्लस थीटा, सभी को मालूम है cos थीटा इक्वल टू cos 360 प्लस थीटा। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू के, 2 इंटू सॉरी 360 मीन्स 2 पाई, 2 पाई मीन्स 360। अब के की वैल्यू अपन रखते हैं, के इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, ओनली थीटा। के इक्वल अपन 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 360 प्लस थीटा मीन्स कोस थीटा, के इक्वल टू 2, देन कोस 720 प्लस थीटा, और ये जो पावर है दी मोरर से आगे आ गए यहाँ पे। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट।
Euler form z equal to r cos theta plus I sin theta equal to r ei theta is known as Euler form, where theta equal to argument of z and r equal to modulus of z. Question 1. Find the modulus and argument of the complex number z equal to I minus 1 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3. इसको हम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं. फर्स्ट यहाँ पे कोस और साइन की वैल्यू रख देंगे. देन राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन a plus bi फॉर्म एंड देन कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म. सो वी गेट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट. नाउ यूजिंग दी मोइवर थ्योरम. अब z इक्वल टू क्या दे रखा आपको? सिंस z इक्वल टू I minus 1 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3. I sin pi by 3. Equation number 1. Let z1 equal to माइनस 1 प्लस आई. जो न्यूमरेटर है उसको अपन क्या लेट कर लेते हैं? z1. हम नो राइट कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर फॉर्म माइनस 1 कॉमा 1. अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम आर्ग्यूमेंट भी फाइंड कर सकते हैं और मॉडुलस भी फाइंड कर सकते हैं. पहले अपन मॉडुलस फाइंड कर देते हैं. आर इक्वल टू क्या होगा? रूट माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. we get root 2. For argument, first find tan alpha. Means first find value of alpha with the help of this formula. Tan alpha equal to mod b upon a. अब b के प्लेस पर अपन 1 रखेंगे और a के प्लेस पर माइनस 1. तो tan alpha की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? प्लस 1. 1 अपॉन माइनस 1 और माइनस 1 का मोड कितना हो गया? माइनस 1 का मोड प्लस 1. अब tan alpha equal to 1. So we get alpha equal to 45 degree pi by 4. अब माइनस 1 प्लस 1 means lies in second quadrant. Since minus 1 comma 1 lies in second quadrant, therefore थीटा इक्वल टू, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 माइनस अल्फा. 180 मीन्स पाई माइनस अल्फा. पाई माइनस अल्फा मीन्स पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. therefore corresponding polar form. Polar form is क्या हुआ? corresponding polar form z1 equal to r cos theta plus I sin theta. r means root 2 एंड थीटा क्या निकाला हमने? 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4. और इसको हम आइलर फॉर्म से क्या लिख सकते हैं? रूट 2 ई टू दी पावर आई 3 पाई बाय 4. therefore z इक्वल टू, z1 की वैल्यू हमने निकाल दी रूट 2 ई टू दी पावर आई 3 पाई बाय 4.
अब नाउ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या था, कोस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। इसको हम आइलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आई पाई बाय 3, ई टू दी पावर आई पाई बाय 3। यहां लिख देंगे हम ई टू दी पावर आई पाई बाय 3। अब नेक्स्ट है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, e to the power I 3 pi by 4 upon e to the power I pi by 3. So e to the power I 3 pi by 4 minus I pi by 3. अब नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रूट टू एंड ई टू दी पावर आई, अब इसको माइनस करो, 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, सो 9 पाई माइनस 4 पाई, 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12। क्वेश्चन इज फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आपको मॉडुलस क्या दिखा था, रूट टू बाय एलर फॉर्म, रूट टू क्या होगा आपका मॉडुलस, एंड जो आई का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया आर्ग्यूमेंट। देयरफॉर mod z इज इक्वल टू रूट टू एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी हमको 1 का क्यूब रूट निकालना है। सो लेट x इक्वल टू 1 रेज टू दी पावर 1 बाय 3, 1 का क्यूब रूट अपन क्या लेट कर लेते हैं x। अब नाउ फर्स्ट कन्वर्ट 1 इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मींस cos थीटा प्लस i sin थीटा। Let z equal to 1, we can write 1 plus 0 into I, or in order pair form we can write 1 comma 0. So first find modulus of complex number, r equal to mod z, और mod z हम कैसे निकालते हैं, रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी आपको मॉडुलस क्या मिल गया 1। अब नाउ फाइंड आर्ग्यूमेंट, we already discussed if one of the coordinate is 0, then find argument of a complex number by observation. Where is 1 comma 0 lie? 1 comma 0 lie on positive direction of x axis। देखो यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं, x and y axis, this is y axis, so 1 comma 0 lies on पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देन आर्ग्यूमेंट कितना होगा, इफ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन थीटा इक्वल टू 0। इफ पॉइंट पी लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस देन आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, so theta equal to, so therefore argument of z means theta equal to 0 degree। so therefore corresponding polar form, यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, r तो 1 हो गया, cos theta means cos 0 डिग्री प्लस I sin 0 डिग्री। therefore x equal to 1 raised to the power 1 by 3 means cos 0 degree plus I sin 0 degree raised to the power 1 by 3। अब नो बाय आइलर,
sorry. Now De Moivre theorem. We can write cos 2k pi plus 0 degree. This is simple trigonometry, plus I sin 2k pi plus 0 degree. Cos 360 plus theta equal to cos theta. Cos 720 degree plus theta also cos theta. अब next step, by De Moivre theorem, cos 2k pi upon 3 plus I sin 2k pi upon 3, where k equal to 0, 1 and 2. And now first take k equal to 0. Then first root of unity क्या मिलेगा आपको? जैसे k के प्लेस पे 0 रखो तो क्या मिलेगा आपको? cos 0 प्लस I sin 0. cos 0 डिग्री प्लस I sin 0 डिग्री. 0 रेडियन में 0 डिग्री. cos 0 कितना होता है? 1 और sin 0 0. So we get 1. Now take k equal to 1. x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? जैसे अपन क्या रखेंगे k इक्वल टू 1 तो 2 पाई बाय 3 cos 2 पाई बाय 3 प्लस I sin 2 पाई बाय 3. अब नाउ टेल मी cos 2 पाई बाय 3 मीन्स cos 120 डिग्री. उसकी वैल्यू होती है -1/2 प्लस I एंड sin 120 की वैल्यू होती है √3/2. After simplify we get -1 plus I √3 upon 2. So this is second root of unity. Now put k equal to 2. So we get x equal to cos. अब जैसे अपन रखेंगे 2 तो क्या मिलेगा? 4 पाई बाय 3. 4 पाई बाय 3 मीन्स 240 डिग्री प्लस I sin अब यहाँ रखेंगे k के प्लेस पे अब 2 तो कितना हो जाएगा? 4 पाई बाय 3 मीन्स 240 डिग्री. नेक्स्ट स्टेप cos 240 डिग्री -1/2 and sin 240 degree minus √3/2. So minus I √3/2. And after simplify we get -1 minus I √3 upon 2. So these three are cube root of unity. 1 -1 plus I √3/2 and -1 minus I √3/2. Thank you. Have a nice day.